Using the scientific method, चैप्टर नंबर 2 की सेकेंड हेडिंग हम देखेंगे बेटर सैनिटरी कंडीशंस। इससे पहले कि इस हेडिंग के अंदर जितने भी पैराग्राफ्स आते हैं हम उनको पढ़ें और उनको डिस्कस करें कि उनमें क्या है, मैंने बोर्ड पर सिर्फ हेडिंग लिखी है और उसके साथ इन पैराग्राफ्स में आने वाले डिफ़िकल्ट वर्ड्स लिखे हैं। इन वर्ड्स को हम पढ़ेंगे और इनके मीनिंग्स को देखेंगे, उसके बाद फिर हम रीडिंग करेंगे। फर्स्ट वर्ड है wondered, wondered। सेकंड demonstrated, demonstrated। थर्ड dysentery, dysentery। fourth sparingly, sparingly। and the last word is sufficient, sufficient। wondered फिरते हुए, demonstrated बाज़िया किया है, dysentery पेचिश, sparingly कफ़ायत शारी से, sufficient काफ़ी। आप अपनी अपनी बुक्स मेरे साथ खोल लीजिए, आइए हम रीडिंग करेंगे। Better sanitary conditions. It is difficult to imagine what sanitary conditions in some of our larger cities were like only 100 years ago. Into the narrow, unpaved and poorly drained city streets, household garbage and other refuse were thrown. Animals wandered through the streets, feeding upon the garbage. Outdoor toilets were common, many of them situated where human wastes drained into wells, from which people obtained drinking water. Today, our city streets are paved and well drained, and they are cleaned regularly. It is against the law to throw garbage in the streets. Sewage from all sections of a city is carried through sealed pipes to disposal plants. Through the use of scientific method, it has been demonstrated that unsanitary conditions cause the spread of diseases like typhoid fever, cholera, and dysentery. Today, most city governments have departments of sanitation which keep the cities clean and thereby prevent the spread of certain diseases. A century ago, it was common practice in many cities to bring water by the bucketful for household use. Water had to be carried a considerable distance from the well to the home. It was therefore used by sparingly for bathing and cleaning purposes. Often it came from sources that contained disease-producing germs. Towns and cities today have water systems that usually provide water enough for household use. One of the most important problems in the growth of cities has been to provide sufficient water to meet the many needs of an increasing population. Los Angeles has solved the problem by bringing water to the city from the Colorado River, 544 kilometers away, carried through a pipeline or aqueduct. 1,000 million liters of water are delivered to the district daily. This is a remarkable advance from the bucket system of supplying homes with water. इस हेडिंग में राइटर्स जो हैं वो बेहतर सफाई सुथराई के हालात को बयान करते हैं। इसमें आपको पास्ट और प्रेजेंट का बड़ा खूबसूरत कंपैरिजन नज़र आएगा। राइटर कहता है कि अगर हम 100 साल
पीछे चले जाएं तो हम देखेंगे कि शहरों की, गाँव की, कस्बों की जो सफाई सुथराई की हालत है वो बहुत खस्ता थी, बहुत नाकिस थी, बहुत बुरी थी। गलियाँ छोटी छोटी सी, तंग तंग सी, टूटी फूटी और कच्ची थीं। तो वहाँ पर जो कूड़ा करकट है घरों का वो भी इर्द गिर्द फैला हुआ था। तो उसी कूड़ा करकट में जो है वो जर्म्स फैलते और उसी कूड़ा करकट जो है वो जानवर भी खाते और इर्द गिर्द मरे पड़े हुए होते। अब कूड़ा करकट अपने अंदर जो है वो बीमारियों का गढ़ है, बीमारियों की सबब है। तो जब जानवर मरेंगे तो वो भी सोने पे सुहागा, मज़ीद गंदगी और बदबू और जो बीमारियों हैं उनको उनकी एक दावत थी। अब उससे बढ़कर ये है कि ये जो कूड़ा था, गंद था, ये बह बह कर पानी की तरफ जाता, पानी के कुओं की तरफ चला जाता। अब उस वक्त जो मेन सोर्स पानी का था वो कुएं थे। अब उसी कुओं में से जब पानी को इस्तेमाल किया जाता तो मज़ीद बीमारियां जो है वो फैलती। इसकी निस्बत आज अगर हम अपने शहरों की हालत देखें तो बहुत बेहतर है। गलियाँ जो है वो बड़ी बड़ी सी हैं, साफ़ सुथरी हैं, ठीक है, और आपको नालियाँ नज़र नहीं आएंगी बल्कि आपको अंडरग्राउंड पाइप्स नज़र आएंगे जिनके अंदर से गंदा पानी जो है वो नालों में और फिर किसी बड़ी जगह पर पहुंच जाता है। और इसी तरह से जो गंदगी है उसको भी उठाने के लिए गवर्नमेंट ने लोगों को मुख्तस किया हुआ है कि लोग जो हैं वो गलियों को भी साफ़ करेंगे। उस गवर्नमेंट का एक डिपार्टमेंट ज़िम्मेदारी लेता है सैनिटेशन की, तो वो सारे जो सफाई सुथराई का बंदोबस्त है वो करते हैं। इस तरह से बीमारियां जो हैं वो बहुत कम फैलती हैं। इसी तरह से राइटर कहते हैं कि एक सदी पहले जो घरों में पानी इस्तेमाल करने का सिस्टम था वो बहुत डिफरेंट था आज से। ऐसा नहीं है कि आप वॉशरूम में या किचन में जाएंगे तो नलका खोलेंगे और पानी जो है वो बहना शुरू हो जाएगा, ठीक है। पानी उस दौर में ऐसा था कि लोग बड़ी दूर दूर से कुओं से भर भर के बाल्टियों में लाया करते थे। अब एक घर में अगर 15 अफराद हैं, 10 अफराद हैं, 4 अफराद हैं तो कितने लोग बाल्टियों में भरा हुआ पानी इस्तेमाल करेंगे। और जब आप पैदल जा रहे हैं, पानी ला रहे हैं तो कितनी बाल्टियाँ भर लाएंगे, और हो सकता है आपके घर में 2 बाल्टियाँ या 4 बाल्टियाँ हो। तो फिर क्या होता था कि वो पानी बड़ा किफ़ायतशारी से, बड़े सलीके से थोड़ा थोड़ा करके इस्तेमाल किया जाता था, क्योंकि उसी पानी से बर्तन भी धोने हैं, कपड़े भी धोने हैं, नहाना भी है, कि घर की सफाई भी करनी है। तो वो पानी जो है वो बड़ी एहतियात से इस्तेमाल किया जाता था। और जैसे कि पीछे हमने देखा कि कुओं का पानी भी कोई ख़ास साफ़ सुथरा नहीं था, तो यही पानी जो घरों में बकेट्स के सूरत में इस्तेमाल हो रहा है वो भी गंदगी का बायस, क्योंकि पानी जो है वो फ़िल्टर्ड या उबला हुआ या साफ़ सुथरा नहीं था। अब एक और मसला जो उस वक्त दरपेश था कि जैसे जैसे पॉपुलेशन जो है वो बढ़ती चली गई, आबादी बढ़ती चली गई, लोग बढ़ते चले गए, तो पानी जो है वो उसकी सप्लाई का भी मसला बनता चला गया, पानी भी कम होता चला गया। इस मसले को जो है वो लॉस एंजलिस ने हल किया और उसने 544 किलोमीटर दूर जो कोलोराडो रिवर था वहाँ पर थ्रू पाइप्स, थ्रू एक्वाडक्ट पानी जो है वो डिस्ट्रिक्ट सिटी में लेके आया। और अब जो पानी है वो रोज़ाना 1000 मिलियन गैलन जो है वो शहर को दिया जाता है। इस तरह से लोगों की जान जो है वो बाल्टी सिस्टम से छूट गई कि पानी जो है वो बाल्टियों में लाया जाएगा और फिर उसको इस्तेमाल किया जाएगा। अब पानी की हालत, सफाई की हालत और सैनिटेशन की ओवरऑल हालत जो है वो बहुत बेहतर है। आई होप सो कि ये पैराग्राफ आपको समझ में आया होगा और इसको दोबारा ज़रूर रीड कीजिए।